students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is trapped. Summary जान लेते हैं पहले. This story introduces children to the concept of interaction between wildlife and human actions. Through the bear's journey, it showcases emotions such as curiosity, fear and relief and highlights the importance of kindness and bravery. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ होती है और जो ह्यूमंस होते हैं उनके एक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं. स्टार्टअप. हैव यू एवर कम अक्रॉस अ बेयर? What would you do if you saw a bear in your village? How do you think the bear feels in a new environment? क्या आपने कभी किसी बेयर को देखा या उससे आपका आमना सामना हुआ है? क्या हो अगर आप अपने विलेज में किसी भालू को आता हुआ देखें? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. The bear walked quietly down the village path and stopped to sniff the air. The village was quiet in the hot afternoon sun. The bear walked on. He was young and chubby. Blades of grass were stuck to his soft, shiny black fur. अब क्या होता है कि जो जंगल होता है गांव के आसपास, वहाँ से कभी कभी जो जंगली जानवर होते हैं वो गांव की तरफ आ जाते हैं चलते चलते टहलते टहलते. ऐसे ही कुछ हुआ एक बेयर के साथ. एक भालू जो है वो चलता फिरता घूमता घामता कहाँ पहुँच गया? विलेज में पहुँच गया. लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी, सनी डे था, तो सब लोग अपने घर में रेस्ट कर रहे थे. When he arrived at an open gate, he looked into a courtyard. A girl was sitting near a bed, scrubbing a brass plate with ash and sand. The shiny plate sparkled in the midday sun. The bright light hurt the bear's eyes. He purred. The girl looked up, dropped the dish from her hands and screamed, "Bear!" अब क्या हुआ, वो एक घर के अंदर उसने झाँका जिसका गेट खुला हुआ था. वहाँ पे एक लड़की जो है वो क्या कर रही थी? बर्तन धो रही थी. अब जब बर्तन धोते हैं तो आपने देखा होगा स्टील की प्लेट में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक मिरर जैसा इफेक्ट देती है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो सीधा कहाँ गया? उस बेर की आँख में गया और उसने थोड़ा सा ग्रॉल किया. अब ये सुनकर वो लड़की जो है चिल्लाती हुई अंदर की तरफ भागी कि भालू आया, भालू आया. The young bear was confused and scared. He stepped back. Then he heard a loud noise that made him even more scared. अब उस लड़की की बात सुनकर वो जो भालू था वो भी डर गया था क्योंकि भालू के लिए ये सब नया था, उसने ह्यूमंस नहीं देखे थे. तो लड़की जब चिल्लाई तो वो और डर गया और इसके बाद लोग जो है उस लड़की का चिल्लाना सुन के वो भी बाहर आ गए जो और ज़्यादा स्केरी था उस भालू के लिए. Dogs were barking everywhere, far and near. Suddenly, the young bear could smell danger. He turned towards the road that led through the fields back to the forest, but it was too late. अब वहाँ पे हड़कंप मच गया कि भालू आ गया, भालू आ गया. जो गांव के जो कुत्ते थे वो भौंकने लगे तो जो भालू था वो वापस अपने जंगल की तरफ जाना चाहता था लेकिन बहुत लेट हो गई थी. The road was not safe. It was full of people. Their shouts filled the air. The bear ran as fast as he could over open drains and a garbage dump. रोड जो थी वो उसके लिए सेफ़ नहीं थी क्योंकि रोड्स पे क्या होते हैं, व्हीकल्स जो हैं वो बहुत तेज़ स्पीड से जाते रहते हैं. तो वहाँ पे जब भी कोई एनिमल आ जाता है तो वो उनसे टकरा जाता है. But the hunters kept coming. Through a cloud of dust, he saw them, a group of children with stick, and close behind them were the dogs. Get him, get him. अब लोग जो हैं वो डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगे और बोलने लगे कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो. The bear did not understand the words, but the barking dogs terrified him. He ran blindly into one lane and then another, but it was no use. He was too scared and lost his way. जब हम भी घबरा जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम अपनी सेंसेस में काम नहीं करते, हमें नहीं समझ में आता हमें क्या करना है, कहाँ जाना है. तो वही उस भालू के साथ भी हुआ था. वो इतना डर चुका था कि वो अपना रास्ता तक भूल गया था. Now he was angry. He ran down a lane that led to a square. The square was walled in on all four sides. In the middle was an old dry well. The bear got to the well quickly and looked around. There was no place to hide. He was trapped. अब उसे लगा था कि वो एक वेल के पास पहुंच गया तो वो शत बच गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं था छुपने के लिए. तो उसे पता था कि अब वो क्या हो चुका है, फंस चुका है.
The bear turned to face the children and the dogs. The children threw stones at him, hitting his shoulder and back. The dogs bit his hind legs. The bear shook them off and hit them with his paws. They fell back and he turned around. अब उन दोनों में क्या होने लगी? झड़प होने लगी। मतलब भालू अपनी जान को बचा रहा था और वो लोग उससे बचने के लिए उस पर पत्थर मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। मतलब वो भी अपनी क्या कर रहे थे, उससे एक तरीके से रक्षा कर रहे थे या उसे ये सबक सिखाना चाहते थे कि वो उसके विलेज में दोबारा ना आए। With one big leap, he jumped into the dark well. और उसने एक छलांग लगाई और जो कुआं था उसमें कूद गया। The children bent over the rim and threw stones and sticks into the well. The bear, angry and scared, growled from below. This went on for some time. अब जो भालू था वो कुएं में फंस गया था, लेकिन वो जो बच्चे थे, वो जो डॉग्स थे, वो अभी भी उस पर क्या कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, स्टिक्स फेंक रहे थे, बार्क कर रहे थे। Then suddenly the stones stopped falling and the shouts ceased. The wounded and frightened bear looked up. A single face bent down from the top. It was the girl. The bear did not know that, but he heard her kind and gentle voice and felt that she was a friend. There was something in her voice that comforted him. He stopped growling. अब भालू भी क्या कर रहा था, ग्रॉल कर रहा था और सडनली क्या हो गया, वो जो ग्रॉलिंग थी या वो जो बच्चों का पत्थर मारना था, डॉग्स का बाग करना था, वो बंद हो गया था। तो बेयर ने कंफ्यूज होकर ऊपर की तरफ देखा कि अब ये लोग मुझ पे पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे। लेकिन जब उसने देखा ऊपर की तरफ, एक गर्ल जो थी वो झांक रही थी उस वेल के अंदर, वो सॉफ्टली कुछ कह रही थी। हालांकि बेयर की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उससे ये लग रहा था कि ये मेरी क्या है, फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। That's better, the girl said. Poor bear, you must be so tired. Now sit down and wait. I'll get you out of this. वो गर्ल उससे क्या कहती है कि तुम बहुत थक चुके हो, तुम यहाँ पे क्या करो, आराम करो, मैं हेल्प के लिए किसी को बुलाती हूँ। She turned to the children. Everyone respected her and knew that their bear chase would upset her. Why are you hunting this animal? She asked. She hasn't done anything to you. Go away. अब वो सब पे चिल्लाती है कि तुम इस बेचारे जानवर को क्यों हर्ट कर रहे हो, ये इसने तो किसी को हर्ट नहीं किया, तो तुम इसे क्यों हर्ट कर रहे हो। Come on, Meera Didi. We didn't mean any harm. Someone said the bear scared the girl and we wanted to scare him. That's all. It was just a joke. अब वो आंसर में क्या बोलते हैं कि इस भालू ने एक लड़की को डराया तो हम भी इसको क्या कर रहे थे, डरा रहे थे, ये बस एक फन था, जोक था। I don't think so, she said, chasing a young bear into a well. Luckily, he hasn't broken his neck. Now, can you help me get him out? Can you get me a ladder? अब वो उनसे क्या मंगवाती है, एक सीढ़ी मंगवाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो भालू जो है कुएं से बाहर आ जाए। I can, said a small boy, Lakshman, and ran off. In a few minutes, he was back, dragging a ladder. I have got a ladder, he said. Wonderful, said Meera. This will help us rescue the trapped bear. Now help me put it into the well. Be careful, we must not scare him. अब वो कहती है कि इसको आराम से निकालना, नहीं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डर जाएगा। Meera looked into the well and spoke softly to the bear. Slowly and carefully, she and Lakshman lowered the ladder into the well. The little bear growled nervously. He clawed at the ladder wildly. अब वो जो बेयर था वो नर्वसली ग्रॉल कर रहा था, ठीक है, उसकी वॉइस में एक नर्वसनेस दिख रही थी, वो अब गुस्सा नहीं था। नो नो, सेड मीरा सॉफ्टली, इट वोंट हर्ट यू, इट्स जस्ट अ लैडर, मूव बैक, मेक रूम फॉर इट। अब जो जानवर होते हैं उनके लिए इंसानों की दुनिया अलग होती है, उनकी चीज़ें अलग होती है, तो जब वो लैडर उसकी तरफ फेंक रहे थे या उसको डाल रहे थे तो वो जो भालू था और डर रहा था, तो मीरा उसको क्या कर रही थी, पैसिफाई कर रही थी कि तुम इस चीज़ से डरो मत। The bear stepped back and sniffed the ladder curiously. Slowly he tried to first step, then another, and then the third. He climbed the next 6 steps quickly. When he was almost halfway up, he stopped and looked at the girl with trusting eyes. अब जब उसे लगा कि ये जो लैडर है ये मेरे ही फ़ायदे के लिए नीचे भेजी गई है, तो उसने धीरे से पहले उस पर एक पैर रखा, 2 पैर रखा, और करते करते वो बाहर की तरफ आने लगा। Come up, she said gently. No one is going to hurt you. She and Lakshman moved away from the well. Will the bear come up here safely? Meera wondered. Anything could happen. The ladder could slide off, or it could fall, or one of its steps could break. As they watched anxiously, the bear
head appeared above the rim of the well, and then his shoulders. His sniffs climbed into the rim and jumped to the ground. He looked at Meera. Now go on, run home, she said, smiling at him. धीरे धीरे वो भालू बाहर आया और मीरा ने उससे कहा कि जाओ अपने घर चले जाओ, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा. The bear got to his legs and bowed. Yes, he did. Lakshman saw him bow. He bowed to Meera and then walked down the lane to the main road. Once he was on the road, he ran through the large green fields back into the forest. अब जैसे ही वो बाहर निकला, उसे पता था कि ये मेरे क्या है, फ्रेंड है, तो उसने उसको थैंक यू बोला, मतलब वो करके थोड़ा सा झुक के और वो अपने जंगल की तरफ चला गया. Word bucket, courtyard, an open space surrounded by buildings or walls. Scrubbing means rubbing hard to clean. Ash means the powdery residue left after burning something. Purred mean made a low continuous vibratory sound expressing contentment. Barking, the sound a dog makes. Terrified means very scared. Growl means made a low sound of hostility. Trusting, believing that someone is good and honest. Anxious, experiencing worry, unease और nervousness. तो इस चैप्टर में हमने जाना कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी काफ़ी क्या होते हैं, सेंसिबल होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं. तो उनके प्रति हमें भी क्या रहना चाहिए, हमें काइंड रहना चाहिए, उनके प्रति हमें कोई क्रूअल्टी नहीं दिखानी चाहिए. नाउ इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. थिंक एन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डिड द बेयर डू व्हेन ही सॉ द गर्ल. उसने क्या किया, उसने पर्ड किया, मतलब धीरे से जो ग्रॉल की साउंड होती है वो निकाला. रीड द एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. अब यहाँ पे चैप्टर से कुछ एक्सट्रैक्ट हमें दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के आंसर देंगे. एक्सट्रैक्ट 1, द बेयर गॉट टू द वेल इन अ फ्यू लीप्स एंड looked around. There was no place to hide. He was trapped. Where did the bear end up? Bear कहाँ जाके फंस गया था, वो एक वेल में जाकर के फंस गया था. Extract 2, she and Lakshman lowered the ladder into the well. The little bear growled in anxiety. He clawed at the ladder wildly. Who lowered the ladder into the well? किसने डाला उस लेडर को, सीढ़ी को? She कौन है, मीरा and Lakshman. Fill in the blanks with suitable words. The bear walked down the village path. ठीक है. Now write true or false for the following statements. The bear was old and skinny. नहीं, वो bear जो था वो क्या था, young था और वो energetic था. Answer the following questions. What was the bear's reaction to the glare of the plate? उसका क्या रिएक्शन था जब उस पर प्लेट का एक चमक पड़ी, तो वो उसने क्या किया, उसने ग्रॉल किया अपनी वॉइस में. वैल्यू इनसाइड, इफ यू वर मीरा हाउ वुड यू हैव हेल्प्ड द बेयर. अगर आप मीरा होते तो आप उस बेयर की कैसे हेल्प करते. वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन चेज द बेयर. वो जो बच्चे थे उन्होंने उस बेयर का पीछा क्यों किया, क्यों उसको चेज कर रहे थे, तो ये आपको बताना है. वर्ड पावर, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस. तो आपको डिक्शनरी यूज़ करनी है और इन वर्ड्स का जो अंडरलाइन किए गए हैं उनका आपको मीनिंग बताना है. शी गेज एट द लूमिनस स्टार्स इन द नाइट स्काई. लूमिनस का मतलब होता है जो चमकता है, जो लाइट देता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पार्कलिंग, शाइनिंग, ये सब भी इसका मीनिंग बता सकते हैं. मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आपको सेंटेंस बनाने हैं. जैसे कि चेजिंग, I was chased by a strange person, या he was chasing me. कुछ भी आप लिख सकते हैं. चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो आप किसी का पीछा कर रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं. Now grammar strokes, reading and writing skills. Adverb. An adverb is a word that modifies or describes a verb. An adjective or another adverb. Example, he turned and ran blindly into the next lane. Adverb blindly modifies the verb ran. तो एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स विद द हेल्प ऑफ हिंट बॉक्स. हिंट बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, आपको अप्रोप्रिएट बॉक्स को क्या करना है, बॉक्स में से एक वर्ड चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे सी, शी सिंग्स, कैसे,
लाउडली गाया उसने, ब्यूटीफुली गाया, जॉयफुली गाया, किस तरीके से उसने गाया ये आप लिखेंगे। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। द बर्ड फ्लू स्विफ्टली अक्रॉस द स्काई। तो बर्ड जो है वो स्काई में घूम रही है, कैसे घूम रही है, स्विफ्टली। तो उसके घूमने को या उसके फ्लू करने को बताया गया है मॉडिफाई करके स्विफ्टली, तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे। नाउ स्पीकिंग टाइम, कैन यू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर शोइंग काइंडनेस मेड अ पॉजिटिव डिफरेंस। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है जहाँ पे आपको लगा हो कि काइंडनेस दिखा करके आपने कोई पॉजिटिव डिफरेंस किया हो, मतलब कोई पॉजिटिव डिफरेंस आपके काइंडनेस दिखाने से आया हो। Listening activity, your teacher will share a story of a bird named Pip. Listen to it carefully and answer the questions that follow. In a tranquil village nestled among the hills, a small sparrow named Pip filled the air with his cheerful melodies each morning. One stormy afternoon, Pip found himself trapped in a courtyard, his chirps drowned out by thunder. While most villagers hurried past, a young Leela, moved by compassion, rescued Pip and sheltered him in her family's barn until the storm subsided. Pip's grateful songs echoed through the barn, forgiving a special bond between him and Leela, who learned the profound impact of kindness. Now questions, why was Pip unable to make himself heard in the courtyard during the storm? तो storm की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी, वो अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे इस पैसेज को पढ़कर और इसमें से ढूंढ के। Writing activity, pretend you are one of the children who chased the bear. Write a letter to Meera apologizing for your actions and explain what you learned from the experience. अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप उन बच्चों में से एक थे जो उस बेयर को, उस भालू को पत्थर मार रहा था। आप अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं और आप मीरा को क्या कर रहे हैं, एक अपॉलॉजी लेटर लिख रहे हैं। तो उस लेटर में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे ये आपको बताना है। Life skill activity, reflect on a time when you showed empathy and compassion to someone or something in need. How did your actions make a difference and what did you learn from that experience? अब आपको याद करना है कि आपने किसी को सिंपैथी दिखाई हो या आपने किसी की हेल्प की हो, ठीक है, और आपने उसकी हेल्प करके क्या डिफरेंस अपने अंदर महसूस किया ये भी आपको बताना है। Now project activity, find and circle the words listed below in the words search grid. The words can be arranged horizontally, vertically or diagonally and can be found forwards or backwards. आपको क्या करना है, जो वर्ड यहाँ पे आपको दिए गए हैं वर्ड्स टू फाइंड, जैसे कि बेयर है, विलेज है, डॉग है, इन सब वर्ड्स को आपको इस वर्ड ग्रिड में सर्च करना है। ये वर्ड वर्टिकली भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं और डायगोनली भी हो सकते हैं, मतलब टेढ़े भी हो सकते हैं। अब जैसे बेयर है, ये फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है, आप इससे सर्कल करेंगे। विलेज, डॉग थर्ड लाइन में है, तो इस तरीके से आप इन्हें ढूंढेंगे और सर्कल करेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर ने हमें ये समझाया कि हमें जो एनिमल्स है उनके प्रति क्या रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, क्योंकि उनमें भी क्या होती है, जान होती है, उनको भी दर्द होता है। हालांकि वो हमारी तरह बोल नहीं पाते लेकिन उनको भी दुख, तकलीफ़, दर्द होता है, तो हमें उन्हें किसी भी तरीके से अपने मज़े के लिए या उनको टीज़ करने के लिए हर्ट नहीं करना चाहिए। I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.